today let's start with chapter number 9, force and pressure. In this chapter we will study about force, type of forces, pressure, application of pressure देखेंगे daily life में, और pressure exerted by liquids और atmospheric pressure को देखेंगे. Now force, we do lot of activities in our day like pushing things, pulling things, hitting cricket ball or lifting something and do so. Now let's recall some activities in our routine life. Opening a drawer of a table and then closing, taking off cap from the pen to start writing, ठीक है, dribbling a basketball or volleyball, या moving our shopping cart. There is something common in these activities if we look carefully. We have pulled a drawer in the table to put the books in it. Push it back. हमने क्या करा? हमने कैप को पुल करा, ठीक है, पेन ओपन करने के. We have to push a shopping cart to make it move. In this push or pull which is applied on object makes them to move, to change the direction or to stop it in motion. The push or pull which is applied on a body to bring about some change in its position and form is called force. उसे क्या कहा जाता है? Force कहा जाता है. Now magnitude and direction. The harder you push or pull, the greater the magnitude of a pull. जितना ज़्यादा harder या push या pull करोगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? Magnitude. Sometimes a batsman is able to hit a ball hard, scoring a 6, and at other times the strength of his shot may have enough to easily field. In a form of case, अगर हम बात करें, the direction in which a push or pull is applied, उसे हम क्या कहते हैं? Direction of force कहते हैं. The effect of force will change with a change in its magnitude. If you stand in front of football, if you start moving itself, क्या वो अपने आप start होगी? नहीं, आपको interact करना पड़ेगा, उसको push करना पड़ेगा या फिर pull करना पड़ेगा. Now balance force. Even when things may still, faces are acting on them. When you stand on the floor, gravity pulls you down. Okay, if the floor did not push you back, you would start to move, and since force are equal and balanced. Have you played a game tug of war? There are two teams pull each other. देखो दो टीम क्या कर रही है? एक दूसरे को opposite direction में pull कर रही है. This happens when force applied by the two team is equal and opposite. जो force क्या होगी? The force is balanced. When things are not moving, forces acting on them are balanced. A table on the floor does not move. और जो gravity होती है वो क्या करती है? Table को down करती है और push करती है up by the floor. Now resultant force. If you are able to lift a heavy box, the force exert हुई है वो stronger होगी than its weight. जब भी वो move कर पाएगा, अगर वो आप ज़्यादा नहीं होगी तो वो move नहीं कर पाएगा. Many forces may be acting on the object. It is a net force acting on the object that will affect the object. Net force which cause some effect on the object is called the resultant force. उसको क्या होता है? Resultant force कहा जाता है. If two or more forces act in the same direction, force added up और जो resultant force होती है वो क्या होती है? Sum total of all the forces. जो object क्या करता है? Speed को gain करता है. If a cupboard is moved by more than one person, it is easier to move. और जो resultant force होती है वो क्या होती है? F1 plus F. क्या होती है? F1 plus F. Next is effect of force. When the force is applied, बहुत अलग अलग इफेक्ट होता है. पहले ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो चलता हुआ ऑब्जेक्ट है उसको किसमें करती है? पोजीशन को रेस्ट पे जाती है. व्हेन यू किक अप स्टेशनरी फुटबॉल यू मेक इट मूव. व्हेन यू पिक अप अ ग्लास ऑफ वाटर यू चेंजेस पोजीशन ऑफ रेस्ट. वो रेस्ट से क्या करा आपने? उसकी पोजीशन चेंज कर. वो स्पीड जो होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो चेंज कर. इफ अ फोर्स इज अप्लाइड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ज़्यादा स्पीड मूव फास्ट करेगा. और जो फोर्स होगी वो डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट में लगेगी. और जो स्पीड जो होगी तो ऑब्जेक्ट की वो रिड्यूस हो जाएगी. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. व्हेन अ बैट्समैन हिट अ बॉल विद इट्स बैट इट अप्लाइज फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन. Change the direction of your moving bicycle by applying force or handle wear to turn it, and the force can change the direction of movement. और force क्या करती है? Direction of motion को change कर. The state of motion of a body described by its speed and direction. जो state होती है motion के of a object at rest in the state of zero speed. जो change in speed होती है तो direction of the motion की उसको हम क्या कहते हैं? State of motion of the object. Force क्या करती है? Shape और size को भी change कर देती है. देखो आप squeeze करो, press करो. अगर आप प्रेस करोगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. डो इज शेप्ड इनटू अ फ्लैट चपाती बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन चेंज साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो क्या करता है? साइज और शेप दोनों को ही चेंज करता है. फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग आउट चेंज इन द शेप. इफ यू स्क्यूज आयरन बॉल तो उसकी शेप है वो चेंज नहीं हो. दो तरीके की फोर्सेज होते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ फोर्सेज, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. If you kick a football, your leg comes in contact with football. In horse cart, horse pull by the cart means
हार्डनेस वो अटैच होती है। देखो अब जो फोर्स जो एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट पे, कांटेक्ट में आने के बाद उसे कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट कमिंग इन कांटेक्ट उसे क्या कहा जाता है, कांटेक्ट। फोर्स दैट ऑन ऑब्जेक्ट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट वो बिना किसी कांटेक्ट के आती है, उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे आपकी मैग्नेट्स हो गई, वो एक्ट करती है नॉन कांटेक्ट। नाउ कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स की हम बात करेंगे। व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग और किक अ फुटबॉल, यू अप्लाई अ फोर्स। फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ योर बॉडी को मस्कुलर फोर्स कहते हैं। सिंबल्स जो होते हैं वो मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। योर ब्लड गेट्स पुश्ड इनटू योर आर्टरीज बाय द मस्कुलर। फ्रिक्शनल फोर्स, व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन अ ग्राउंड, यू विल सी कि वो ट्रैवल करके कुछ डिस्टेंस पे और चलते चलते वो रुक जाती है, तो कैसे फोर्स है वो, फ्रिक्शनल। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की अगर हम बात करें, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। ऑल सच फोर्सेज एक्ट थ्रू अ फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस। ये बॉडी क्या करते हैं, एक्सर्ट करती है फोर्स को फ्रॉम अ डिस्टेंस और अनदर बॉडी। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेज क्या है आपकी, नॉन कॉन्टेक्ट। मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, इफ यू प्लेस सम पिन्स ऑन द टेबल और आप स्मॉल मैग्नेट्स लेके आओगे पिन के पास, तो उसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द पिन एंड मैग्नेट, स्टिल जो है मैग्नेट क्या करेगी, पिन को पुल कर लेगी। तो कैसी फोर्स हो गई, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फिर है देखो, दो मैग्नेट होती है वो रिपेल, अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एंड्स जो उसके फेस कर। लाइक पोल्स रिपेल इच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे बैलून है, आप उसे रब करा, वो इलेक्ट्रिक का चार्ज हो जाता है, उसे पिकअप करिए, स्मॉल ऑफ पेपर को उसके पास लाइए, बिना टच करे भी उस पर चिपकने लगे। ठीक है, इससे क्या पता चला, दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वो अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी। अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो एक्ट करती है ऑन यू एंड ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड ऑल द टाइम। ग्रेविटी क्या होता है, ये वो फोर्स होती है विद विच द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। ये किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, हर चीज क्या नीचे की तरफ गिरती है। देखो आप बॉल के ऊपर फेंको नीचे ही आएगी, फोर्स में होता है टोक के नीचे ही गिरते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स दिस फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट। जो मैग्नीट्यूड होती है इस फोर्स की, वो किस पे डिपेंड करती है, मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट और उनके बीच में क्या डिस्टेंस। ठीक है, उनके बीच में क्या डिस्टेंस। This is because earth pulls heavy rock and with greater force. We say that heavy rock has more weight than lighter rock. So weight is the measure of the earth's gravitational pull. When you weight an object using a spring balance, आप मेजर करते हो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑन अदर हैंड यू वुड वेट 3 times more on Jupiter with a greater than mass, क्योंकि आप जो आपका अर्थ पे मास है उससे आप 3 times जाओगे, ज्यादा होगे जुपिटर। नाउ प्रेशर, यू वुड हैव हियर्ड एंड यूज द वर्ड प्रेशर इन कनेक्शन विद द प्रेशर कुकर, ब्लड प्रेशर और लो प्रेशर। ठीक है, आपने सुना होगा। इन बोथ द केसेस डाउनवर्ड फोर्स इज ड्यू टू वेट ऑफ द कार्ड एंड देयरफॉर सेफ। इन सेकंड केस जो प्रेशर होता है वो मोर होता है और वो ज्यादा देर तक एक्ट करता है। जो इफेक्ट ऑफ बॉडी है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया। प्रेशर क्या होता है, इट्स फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये पास्कल, इसको हम पास्कल भी कहते हैं और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्लासी पास्कल। ठीक है, इफ द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन केजी वॉट, जो यूनिट प्रेशर जो होगा वो केजी वॉट होगा। देखो प्रेशर जो एक्सर्ट का ट्रैक में वो कितना है, 5 लाख न्यूटन है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 0.4 मीटर। आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स है ऊपर लिखेंगे और नीचे एरिया। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, हम जो एप्लीकेशंस हैं जो प्रेशर के हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे ब्रेक रेस्टिंग ऑन अ बोर्ड बेस एक्सर्ट लेस प्रेशर और डज नॉट इजीली सिंक इन द वेट सॉइल, क्योंकि वो रेस्ट कर रही है नैरो बेस। सपोज यू आर कटिंग एप्पल विद अ नाइफ, द शार्पर नाइफ विल हैव स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और जल्दी से कट हो जाएगा, और जहाँ पे वो होगा वो थोड़ा टाइम लगाएगा। It is easier to piece a piece of cardboard with a pin. If a pin has sharp tip, तो वो easily उसमें घुस जाएगी, क्योंकि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो स्मॉल है और जो प्रेशर एक्सर्ट है वो ज्यादा। स्कूल बैग्स एंड शॉपिंग बैग्स, इनके ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं क्योंकि दे आर कैरी नैरो स्ट्रिंग्स, जैसे कि स्ट्रैप ये सीवियर पेन कॉज करते हैं, क्योंकि जो वेट ऑफ द बैग है वो किस पे एक्ट करता है, आपके शोल्डर पे, और जिससे प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। Plotter wear turbans, they have to carry loads on their heads और इससे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो जाता है और ये प्रेशर को रिड्यूस करता है हेड।
Water tanks move caterpillar tracks broad chain like cover. This causes large increase in the area of contact. Due to this, जो pressure होता है ground का वो reduce हो जाता है, so that tanks can even move on soft wet ground. Pressure exerted by liquids. देखो liquids have weight and they exert pressure. To understand pressure exerted by liquids, ये कुछ एक्टिविटी दी गई, एक्टिविटी 5 और 6, ये आपको करके देखनी है. प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ओशन जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और डी सी डाइवर्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं वाटर बॉडीज को कि वो क्रश ना हो जाए. जब प्रेशर ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो वो क्रश ना हो जाए. सबमरीन्स आर बिल्ड ऑन हार्ड थिक शीट ऑफ मेटल, जो हाई प्रेशर अंडर द वाटर उसको संभाल. डैम्स आर ब्रॉडर एट द बेस और देन अ टॉप, क्योंकि जो हाई प्रेशर होता है वो बॉटम पे ही होता है. नेक्स्ट इज मेजरिंग लिक्विड प्रेशर. एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर लिक्विड प्रेशर, जिसे हम प्रेशर गॉज कहते हैं. सिंपल अगर फॉर्म की बात करें प्रेशर गॉज की, उसको हम मैनोमीटर कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास यू टेप जो फिक्स्ड होके स्टैंडर्ड स्केल. इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर. वन एंड ऑफ यू टेप इज ओपन और अदर एंड जो होता है वो अटैच होता है टू अ थर्स्टर फिनर. व्हेन अ थर्स्टर फिनर इज कैप्ड इन द एयर, ओनली एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट, और ये इक्वल होता है टू द प्रेशर जो एक्ट कर रहा है अपॉन द ओपन एंड. द वाटर लेवल ऑन टू साइड्स ऑफ यू वो सेम रहता है. जहाँ पे आप प्रेशर जो होगा जो रबर स्किन का वो लाइटली विद योर फिंगर्स आप करेंगे, तो नाउ गो डाउन एंड बी एंड इट विल गो एंड द डिफरेंस वाटर लेवल कैन बी रीड ऑन द स्केल. आप देखेंगे डिफरेंट क्या होगा, वाटर लेवल आपको दिखाई देगा. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं. देयर इज अ एयर एवरीवेयर अराउंड अस. अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, और यहाँ पे जो कवरिंग ऑफ एयर है उसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिट्स to a height of about 1000 kilometers, or beyond 100 kilometers air is very thin or air exerts force on the earth's surface. The force exerted by the atmosphere on one unit area from atmospheric pressure. ठीक है, क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर. अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एप्लीकेशंस क्या है. ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, ड्रॉपर, सीरीज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पंप्स हम यूज करते हैं एक्सर्ट करने के लिए प्रेशर. जो एयर इनसाइड है उसको पुश्ड आउट करा जाता है, उसको फोर्स करता है ड्रिंक, इंक और मेडिसिन इनटू अ बैरल. ये मैक्सिमम होता है सी लेवल पे. आगे को हायर एल्टीट्यूड एयर थिनर हो जाती है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. एट द हाइट एट विच जेट प्लेन फ्लाइज, जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लोअर प्रेशर इतनी वजह से प्रॉब्लम होती है, नोज ब्लीडिंग, लोगों की नोज ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम होती. दैट इज वाई द प्रेशर इनसाइड द एरोप्लेन इज मेंटेन एट द नॉर्मल ग्राउंड लेवल एटमॉस्फेयर. इसलिए कि एरोप्लेन में आप देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करके रखा जाता है. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.